آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے بہار کے دربھنگا ضلع کے خرما قصبے میں، جہاں کے تالاب اور ہرے بھرے درخت خرما کی آب و ہوا کو تازہ رکھتے ہیں۔ خرما کا یہ مدرسہ، جسے بشارت العلوم کہتے ہیں، ریاست بہار کی علمی، روحانی اور مرکزی درسگاہ ہے۔ خرما قصبے میں جہاں سڑک کے ایک طرف یہ مسجد اور مدرسہ ہے تو دوسری طرف یہ مندر بھی ہے۔ جی ہاں، ایک ہی روڈ پر یہ دونوں مذہبی مقامات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خرما کے ہندو اور مسلمان آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ پیش خدمت ہے ہندوستان کے صوبے بہار کے ضلع دربھنگا کے خرما قصبے کا شاندار آل انڈیا مشاعرے کا ویڈیو۔ جی ہاں، یہ مشاعرہ جو خرما کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا مشاعرہ تھا، اسے سننے کے لیے لگ بھگ 10,000 لوگ تشریف لائے تھے۔ اس مشاعرے کو آرگنائز کیا نوجوان ویلفیئر سوسائٹی خرما دربھنگا نے۔ اس مشاعرے کو آرگنائز کرنے میں اپنا اہم رول ادا کیا اس مشاعرے کے کنوینر جناب شکیل انجم صاحب نے۔ جناب شکیل انجم صاحب نیک دل، ادب نواز شخص ہیں، جنہوں نے اس قصبے میں مشاعرے کی روایت کو زندہ رکھا ہے۔ آج اس سے 25 سال پہلے بھی انہوں نے ہی مشاعرہ آرگنائز کیا تھا۔ شکیل انجم صاحب یوں تو کاروبار کے سلسلے میں دہلی رہتے ہیں، لیکن وقت وقت پر خرما جا کر وہاں کے سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے سابق مرکزی وزیر، کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور ترجمان، نیک دل، خوبصورت انسان، ادب نواز شخصیت جناب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب۔ جلسے کے صدر، نوجوان ویلفیئر کمیٹی خرما کے زیر اہتمام منعقد اس مشاعرے میں میں متھلانچل کی طرف سے انور بھائی، رئیس صاحب اور جتنے بھی شعراء اور شاعرات یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کا دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ سبوں کی طرف سے بہت خلوص کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا سواگت کرتا ہوں، ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں شکیل انجم صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل آراستہ کی ہے اور مجھے بھی اس میں شامل ہونے کا، شعراء کے ساتھ بیٹھنے کا، اردو شاعری سننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں اس کے لیے جو منتظمین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اردو ادب کو سنیل تنگ صاحب بہت پرانے ہم لوگوں کے جاننے والے ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے۔ ان کی شاعری کا لطف سبھی لوگ لیتے ہیں، میں بھی ان کی شاعری کا لطف لیتا رہا ہوں۔ اردو شاعری نے اردو ادب کو اور مشاعروں نے عوام الناس تک پہنچانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اردو شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ اردو جاننے والے تو اردو شاعری جانتے ہی ہیں، جو اردو مطلق نہیں جانتا ہے، بالکل نہیں جانتا ہے، اس کو بھی اردو کے 2-4 اشعار یاد ہیں۔ یہی اردو کی مقبولیت کا راز ہے اور یہی اردو کی مقبولیت کی وجہ بھی ہے۔ اردو کے بارے میں ایک غلط افواہ کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے۔ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اردو اس ملک کے ہر انسان کی زبان ہے جو دل میں محبت رکھتا ہے،
जो तहजीब निशस्त व बर्खास्त रखना चाहता है और जिसको इनकलाब जिंदाबाद को अगर हमारी आजादी की लड़ाई से निकाल दीजिए तो शायद आजादी की लड़ाई में उतना जोश और वलवला नहीं होता जितना इनकलाब जिंदाबाद की वजह से हुआ। आज भी जमहूरियत में मैं आ रहा था, सड़क पे पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ हर उम्मीदवार का आज के समर्थक सपोर्टर्स उनके जो मददगार हैं वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जरूर लगाते हैं। ये उर्दू शायरी की देन है। उर्दू शुअरा ने आजादी की लड़ाई में अपने कलम के जोर से जो जोश व वलवला पैदा किया उसकी मिसाल कम मिलती है। उर्दू कहीं नहीं बोली जाती है, उर्दू दुनिया के 3 ही ममालिक में बोली जाती है। उर्दू के बारे में एक गलत इंप्रेशन कायम करने की कोशिश की गई कि उर्दू कहीं बाहर से आई है। उर्दू दुनिया के 3 ही ममालिक में बोली जाती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी 14 अगस्त 1947 के पहले का हिंदुस्तान। और यहीं से जो लोग बाहर गए हैं दुनिया के तमाम ममालिक में, वो उर्दू साथ लेके गए हैं, उर्दू उनके कल्ब में उनके साथ गई है। और हम सियासी लोग कभी बैलेंस के लिए बोल देते हैं कि उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहनें हैं। सच्चाई ये है कि उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहनें हैं। एक ही इंसान जिनका नाम था, दोनों जबानों को तरक्की के लिए, विकास के लिए एक ही इंसान ने काम किया, जिनका नाम था हजरत अमीर खुसरू। ब्रिज भाषा और खड़ी बोली से अमीर खुसरू खुद शायर थे फारसी के। जिस जबान पे फारसी का असर ज्यादा हुआ वो जबान उर्दू कहलाई, और जिस जबान पे संस्कृत का असर ज्यादा हुआ वो जबान हिंदी कहलाई। हजरत अमीर खुसरू फारसी के शायर थे, बहुत मशहूर है। अनवर भाई के सामने हम लोग क्या बात करें। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद शब जाए कि मनबूदम। और वही अमीर खुसरू कहते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के, ये अमीर खुसरू है। अमीर खुसरू का ही है कि काहे को ब्याही विदेश लखिया बाबुल, ये अमीर खुसरू। गोरी सोई सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपनो साँझ भयो चहुदेश, ये अमीर खुसरू हैं। अमीर खुसरू ने ही उर्दू और हिंदी दोनों की तरक्की दी। हम सियासी लोग बात निभाने के लिए कह देते हैं कि उर्दू और हिंदी सगी बहनें हैं। सच्चाई ये है कि उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहनें हैं। इसलिए गंगा जमनी तहजीब के लिए, हमारे कौमी यकजहती के लिए जो उर्दू का किरदार है, बैठे हैं। इल्जाम लगता है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, और सुनील कुमार तंग जी भी यहाँ बैठे हैं जो मुस्लिम नहीं है, और इस स्टेज में और भी शोरा होंगे जो मुस्लिम नहीं है। मुंशी प्रेमचंद मुसलमान नहीं थे, कृष्ण चंद्र मुसलमान नहीं थे, फिराक गोरखपुरी मुसलमान नहीं थे, प्रेमवाद भट्टी मुसलमान नहीं थे, नरेश कुमार शाद मुसलमान नहीं थे। ये सारे ऐसे लोग थे जो मुसलमान नहीं थे, लेकिन जिन्होंने उर्दू के लिए जान दिया, जो उर्दू के जानेसार थे, ये गैर मुस्लिम समाज के लोग थे। इसलिए उर्दू के साथ जुल्म है अगर कोई उर्दू को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ता है। उर्दू इसी मुल्क में बनी, इसी मुल्क में बढ़ी, इसी मुल्क में जवान हुई, और जो भी तरक्की उर्दू की है, जो कमियां रह गई है तरक्की में, वो इसी मुल्क में है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी 14 अगस्त 1947 के पहले का हिंदुस्तान। यहीं के जो लोग बाहर गए हैं दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, अब तो शायद ही दुनिया का कोई मुल्क होगा जहां उर्दू के मुशायरे नहीं होते हैं। मुझको मौका मिला है गैर ममालिक में भी, दुबई में भी और भी जगहों पर मुशायरों में शरीक होने का, और यकीन कीजिए कि जिस जोश मोहब्बत से यहाँ लोग आए हैं, उर्दू के उसी जोश
मोहब्बत से 7 समुंदर पार अमेरिका में, कनाडा में, आपको नजदीक के ले लीजिए तो सऊदी अरब में, दुबई में, कतर में, दुनिया के हर ममालिक में जो यहाँ के लोग गए हैं वो अपनी जबान साथ लेके गए हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और एक बार फिर जो शोरा यहाँ से आए हैं, बड़े नामवर शोरा आए हैं, और खास के अनवर भाई और रईस साहब जिनसे मेरा पुराना ताल्लुक है। मुझको उर्दू मुशायरों में बैठने का, मैं जब वजीर था तो वसीम बरेलवी साहब अक्सर कहा करते थे कि हिफ्जुर रहमान साहब एक वजीर हुआ करते थे, वो रात भर मुशायरों में बैठते थे और उसके बाद मैं शकील साहब आप ही को वजीर हो गए, मैं देखता हूँ कि आप रात भर मुशायरों में बैठे रहते हैं। मैं उर्दू के मुशायरों को, अपनी बात खत्म करूंगा, आप शोरा को सुनना चाहते हैं कि क्रिकेट मैच से मैं थोड़ा मिलाता हूँ इसको। आपको थोड़ा ताज्जुब होगा कि शायरी और मुशायरे को क्रिकेट मैच से क्यों मिला रहे हैं। क्रिकेट मैच में एक बॉलर बॉल लेके दौड़ा, हो सकता है उस बॉल पे विकेट मिल जाए, हो सकता है उस बॉल पे छक्का लग जाए, हो सकता है 1-2 रन बने, हो सकता है कुछ नहीं बने। तो अगर कुछ नहीं बना तो आप नाउमीद होते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगली बॉल पे कुछ बनेगा। तो अगर एक शायर आए, आप उनको पसंद नहीं आया आपको वो, तो उम्मीद रहते हैं कि इसके बाद वाले जो शायर आएंगे वो हमारे जो शौक है उसको पूरा करेंगे। अगर उनसे भी पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद वाले शायर से उम्मीद रहती है। और माशाअल्लाह उर्दू में वो ताकत है, वो कुव्वत है कि कोई न कोई और ज्यादा से ज्यादा शायर आपकी जो जुस्तजू है अच्छी शायरी सुनने की, उसको पूरा करते हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर शकील अंजुम साहब को, खिरमा के जो हमारे नौजवान वेलफेयर कमेटी के लोग हैं जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल आरास्ता की है, मैं उनको और तमाम शोरा को मुबारकबाद देता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन नामुमकिन हालात में आप उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, उर्दू के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। उर्दू आपकी एहसानमंद है और यकीनी उर्दू की तरक्की के लिए आप एक कदम बढ़ाएंगे तो उर्दू के जो प्रस्तार हैं आपको, आपकी सर आंखों पर आपको लेंगे, आपकी कदर करेंगे। मैं भी खाने पे बैठा था, लोग कह रहे थे चलिए अनवर भाई की बात शुरू हो जाएगी, रईस साहब शुरू हो जाएंगे, सुनील कुमार तंग साहब शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर है कि जो जिनको जानते हैं आपके मद्दाह हैं, लोग फिल्मी सितारों की बात करता है, लोग क्रिकेटर्स की बात करता है, मगर शोरा की जो मकबूलियत है वो आज मुझको सामने नजर आ रही है। इसलिए मैं आपको एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। और आप उर्दू के लिए जो कर रहे हैं, उर्दू जानने वालों के लिए, उर्दू पढ़ने वालों के लिए, उर्दू समझने वालों के लिए आप काबिल कदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत। और कुछ नहीं करना है, कुछ और इन्वॉल्व करना है, नहीं ना? हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारे YouTube अकाउंट पर आप विजिट कर सकते हैं। हमारा YouTube अकाउंट विजिट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर जा सकते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।